بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک طرح سے یوں کہہ لیں بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ چیزوں میں سے یقیناً کوئی بھی خراب چیز اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے، یہ تو سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ہم غلط بیانی کرتے ہیں۔ غلط بیانی بیسیکلی جھوٹ ہی کہلاتی ہے۔ جھوٹ ایسے عجیب سا لفظ لگتا ہے بولنے میں، لیکن بہرحال آپ اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے جو ہماری زبان میں ہے۔ تو وہ عجیب سا کچھ فیلنگز آتی ہیں جیسے ہی یہ نام آتا ہے، یہ لفظ آتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں 4 لفظ ہیں، جیم اور ہے واو ٹے۔ تو یہ عجیب سا یہ 4 لفظ جو ہے وہ جب بولا جاتا ہے یا کسی کو ہم استغفر اللہ، کسی کو ہم سامنے والا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، جھوٹا پرسن ہے، تو وہ اتنا عجیب سا ساؤنڈ ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا، دل عجیب سی ایک کیفیت ہو جاتی ہے دل کی کہ ہم کسی پہ جیسے الزام تراشی کر رہے ہیں، کسی کو ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص کی عادت سی بن جاتی ہے، اس کو فطرت نہیں کہیں گے، ہم اسے عادت کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی بھی چیز کی آپ چائے پیتے ہیں، وہ ایک آپ کی ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ صبح شام آپ کو چائے پینی ہے، تو وہ ایک عادت بن گئی آپ کی۔ کافی پیتے ہیں لوگ، سگریٹ پیتے ہیں، ایسی قسم کی جو بھی چیزیں، وہ ایک عادت ہوتی ہے جس کو چھوڑنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، کوشش کرے تو آدمی چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن سارا مسئلہ جہاں آ کے گھوم پھر کے جہاں پہ آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنے بچے ہمارے سامنے، ہم جب بڑے ہوئے اور جب اب ہماری نسل بڑی ہو رہی ہے اور جو آئندہ نسلیں بڑی ہوں گی، اس میں بس یہ ہے کہ پوائنٹس دیکھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے فور فادرز کو یا اپنے ماں باپ کو، پیرنٹس کو، نعوذ باللہ ہم غلط کہیں، یہ غلط ہے، ان کو ایک طرح سے ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں، ان کی تربیت پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں غلط ہوتا ہے۔ اس کو بس یہ کہ ہم نے سنا، اگر ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے بڑوں نے کوئی ایسی غلط بات ہو گئی ہے، تو ہم اسے خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو آگے نسلوں میں اس کو اچھی طرح سے بڑھائیں۔ اور جو بھی ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، اپنے بچوں کے علاوہ ہمارے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان تک ہم باتوں میں یہ بات پہنچائیں۔ اور سب کو پتہ ہوتا ہے، سب اچھے سمجھدار لوگ ہیں، ہمیشہ سے ہر آدمی سمجھدار ہوتا ہے۔ سادہ ہونا اور سمجھدار ہونے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جھوٹ سے ہی ساری برائیاں، جڑ ہے جھوٹ، ایک طرح سے جھوٹ ہی سے ساری برائیاں شروع ہوتی ہیں، جھوٹ ہی پہ آ کے ساری برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ آپ ہمارے پولیٹیشنز کو آپ دیکھ لیجئے، کیا کیا سہارے لے کے پوری دنیا میں وعدے کرتے ہیں، وہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، ان میں کہیں بھی سچ کی کوئی بھی ایک کرن نظر نہیں آتی، کوئی ایک شائبہ تک نہیں ہوتا سچ کا۔ وہ بس جھوٹے وعدے کرتے جاتے ہیں، اپنے ووٹرز سے ووٹ لینے کے لیے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آج کل کراچی کا حال ہو رہا ہے یا جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے، وہ سب کے سامنے، کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اب تو۔ لیکن ہم بس غلط بیانی، جھوٹ کا سہارا لیے چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں۔ سلطانہ ڈاکو کا میری امی ایک قصہ ہمیشہ ہمیں سناتی تھیں باتوں میں۔ وہ ظاہر ہے باتوں میں ہی تربیت ہوتی ہے بچوں کی۔ تو وہ ہمیشہ ایک بات سناتی تھی کہ جب سلطانہ ڈاکو بہت انڈیا کا مشہور ڈاکو تھا، اور وہ یہ کرتا تھا کہ امیر لوگوں کو لوٹتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ اس نے جب اس کو
ले जा रहे थे जेल, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब मैंने झूठ बोला था, जब मैं एक अंडा लेके आया था चुरा के, मुर्गी का एक अंडा मैं चुरा के लेके आया था मोहल्ले से, काश आप मुझे उसी वक्त मुझे मना करती, और जब आपने मुझसे पूछा कहाँ से लाए हो तो मैंने कहा मैं ख़रीद के लाया हूँ, तो आपने मेरे इस झूठ को सच मान लिया और उसकी तहकीक नहीं की, जिसकी वजह से मैं बढ़ता चला गया और मुझे ऐसा लगा कि ये काम सही है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और बस फिर मैं गलत कामों में उस एक झूठ की वजह से, उस एक अंडे की वजह से वो इतना बड़ा डाकू बना, जो कि गरीबों का तो ये समझ ले अंदाता था, वो उनकी मदद करता था, अमीर लोगों को लूटता था, गरीबों को बांटता था, लेकिन गलत तो गलत था। झूठ की वजह से कितने कितने घर तबाह हो जाते हैं। इधर से उधर आप बड़े लोगों पे हम इल्ज़ाम तराशी करके, झूठ बोल के, एक इल्ज़ाम तराशी और है झूठ बोलना ना, आपने झूठ बोला शख्स में, जो कि झूठ ये है ना कि उस शख्स में या उस खातून में कोई भी चीज़ जो कि वो नहीं है और उसने नहीं कही है, उस बात को आपने आगे जो बढ़ाया है, वो बहुत सारे उसमें मिर्च मसाले लगा के और उसको झूठ का रंग दे के, और आपने वो बात कह दी है जो कि उस शख्स ने कही भी नहीं थी, और उसको पता भी नहीं है कि मेरे लिए क्या क्या पीछे हो रहा है। इसी तरह से हम क्लास में हमारे बच्चे होमवर्क करके नहीं अगर ले गए तो टीचर से झूठ बोलना कि वो मैं बीमार था या मैं ये था। वो जब फिर पेरेंट्स मीटिंग होती है, टीचर्स पेरेंट मीटिंग, उसमें जब पेरेंट्स को पता चलता है कि ये बच्चा तो गलत बयानी से काम ले रहा था, स्कूल से वो गायब हो जाता है। आजकल जो एक माहौल सा बना हुआ है पूरी दुनिया में, तो वो एक अजीब तरह का ये झूठ बढ़ते 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 कहाँ से कहाँ कत्ल गारत तक पहुँच जाता है, और उसके अंजाम तो अच्छे तो नहीं होते, यकीनन हमें सबको पता है। झूठ की वजह से आपकी इज्जत बिल्कुल दांव पे लग जाती है। आप झूठ बोल के, गलत गवाह बन के, गलत कुरान पे हाथ रख के और गलत गवाही दे के मासूम लोगों को जेल पहुंचा देते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता। सिर्फ ये कसूर शायद होता होगा कि वो गरीब हैं। झूठ का सहारा लेके हम कितनी लड़कियों पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर देते हैं, कितने लोगों को तंग कर रहे होते हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे होते हैं, लेकिन हम गौर करने के लिए सोचते ही नहीं है कि हम कभी बैठ के गौर करें कि ये हम क्या कर रहे हैं। झूठ बोल बोल के एक आप आदत सी बना लेते हो, मजाक में झूठ। उसको आदमी सामने बैठा हुआ आदमी यही समझता है कि ये बड़ा फनी सा, बड़ा जॉली सा बंदा है, तो ये जो कह रहा है ये सच होगा। फिर जब आपकी झूठ की आदत पता चल जाती है तो आपकी कोई इज्जत नहीं करती, कोई उनकी वक़्त नहीं होती उस शख्स की। तो वो भी एक तकलीफदेह चीज़ होती है। जगह जगह ऑफिसेज में लोग देर से पहुंचते हैं और कभी कोई बहाना कर देते हैं कि आज मेरी माँ बीमार थी, आज मेरी दादी बीमार थी, आज फलाना था, आज ये था वो था। उसकी वजह से झूठ, तो हम इस झूठ के जाल में फंसते चले जाते हैं। और फिर ये बात दरवाजे पे, मसलन देखिए दरवाजे पे नॉर्मल सी बात है, दरवाजे पे आपके गेट पे कोई आता है और आप मिलना नहीं चाह रहे, तो आप अपने गार्ड से कह देते हैं या आप अपने बच्चों से कह देते हैं कि मैं घर में नहीं हूँ, बस आपका दिल नहीं चाह रहा मिलने को, या आपको उस वक्त आपका मूड नहीं है, तो आप वो कह देते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। टेलीफोन सामने बज रहा है और आप सामने वाले अपने साथी से कह देते हैं कि कह दो कि मैं इस वक्त नमाज पढ़ रही हूँ या मैं आज इस वक्त ये कर रही हूँ। तो ये अगर हम गौर करें तो ये तो बहुत ही मामूली से, दिखने में तो बहुत मामूली है, लेकिन ये झूठ ही है। झूठ अगर हम लोग छोड़ के और बिल्कुल क्लियर बात कर लें, किस चीज़ का डर है हमें, किस चीज़ का डर है? हमारे बच्चे हमें ही, हमारा अमल ही हमारे बच्चों को सिखाता है, फिर वो आगे भी सिखाते हैं। वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, खुद भी झूठ बोलेंगे और गलत सलत रास्तों पे चले जाते हैं झूठ बोल बोल के, और उस तरह से फिर बहुत बहुत ज़्यादा मसले पैदा होते चले जाते हैं। शौहर बीवी से झूठ बोल रहा होता है, बीवी शौहर से झूठ बोलती है अगर,
माँ बाप से बच्चे झूठ बोलते हैं, दोस्तों से दोस्त झूठ बोलते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे को झूठ बता के कि उसने तो ये कहा था, उसने तो वो कहा था। ये सब कुछ इसी की एक किस्म है। हम अगर चाहें तो कोई ऐसा मुश्किल और बड़ा मसला नहीं है। सारी कमी अगर आप गौर करें, सारी कमी कहाँ आके ख़त्म होती है कि हम अल्लाह और उसके रसूल से, इस्लामी तालीमात से बहुत दूर हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सारे उसी में खो जाएं। हर आदमी तारिक जमील नहीं बनता, हर आदमी मौलाना मौदूदी नहीं बन सकता, हर आदमी जो है डॉक्टर इसरार की तरह से आलिम नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर जाकिर, जुनैद जमशेद, ये बड़ी मुश्किल से इसकी तरफ ये अल्लाह ही लेके आता है ना। यकीनन उन्होंने भी अपनी गलतियों से सीख के वो आए। आप जितने भी उलमाए कराम हैं उनसे आप सुन लें, जिनके मैंने नाम लिए, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम मौलाना मौदूदी और डॉक्टर इसरार तो बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन ये कि जुनैद जमशेद हैं या इस तरह के जितने यंगस्टर आ रहे हैं आजकल, वो सब यही कहते हैं कि हम डॉक्टर इसरार जो हैं वो भी शुरू से ही अल्लाह रसूल की तरफ थे। इसी तरह से बड़े लोगों की तो बड़ी बात है, लेकिन जो यंगस्टर आ रहे हैं आजकल, हाशिम आमला है, इस तरह के जितने लोग आ रहे हैं वो उन्होंने अपनी गलतियों से ही सीख के और वो पढ़ के इस्लाम की तरफ आए हैं कि हम गलत कर रहे हैं, ये काम गलत है। हम भी अल्लाह से अगर थोड़ी सी हल्की फुल्की सी लौ लगा लें, सच्चे दिल से बैठ के अपनी अपनी बातों को सोचें। लिखने की और कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सेव करने की, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, और हम अपनी ही गलतियों को सोच लें और देख लें कि हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं। एक एक पॉइंट लेके अगर हम कुछ दिन उस पर काम करें, कोई वजह नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है जो कि हम अमल ना कर सकें। हाँ, बड़ी उलझन होती है, बड़ी तकलीफ होती है। टेलीफोन आया, अगर हमारी आदत है कि हमारा मूड नहीं है करने का, तो हम या तो नहीं उठाएंगे, जब दोबारा उस शख्स को फ़ोन करेंगे तो हम 1000 बहाने बनाएंगे। सॉरी, वो तो जी ऐसा था कि मैं घर में नहीं थी, नेट नहीं था। नहीं, आपको कोई, हाँ, आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। वो शख्स अगर 2 सेकंड के लिए आपसे नाराज़ हो जाता है, होने दें उसको, अपने अल्लाह को राज़ी करें, और कोशिश हम ये करें कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी रहे।